Hello students, I am back with my session number 3. Right kids, in today's session number 3 I am going to explain you about atmosphere and importance of atmosphere. मैं क्या आपको explain करूँगी about atmosphere and importance of atmosphere. But before I start explaining today's session, let me revise you all the things about last 3 sessions. Last two sessions में हमने क्या किया? Vocabulary words, meanings, air, composition of air and properties of air. चलो, let's revise this. Vocabulary words. Number 1, nitrogen. Number 2, helium. Number 3, atmosphere. Number 4, impurities. Number 5, sedimentation. Number 6, decantation. Number 7, evaporation. Number 8, distillation. Number 9, chlorination. Number 10, screening. Number 11, soluble. Number 12, ozone. Number 13, composition. Number 14, spacecrafts. Number 15, pond. Now, meanings. Number 1, filtration. The process of filtering a liquid or gas. Number 2, sedimentation. The process of depositing sediment. Number 3, filter. A device containing paper, sand, chemicals and so on that a liquid or gas is passed through in order to remove any materials that are not wanted. Number 4, chlorination. The process of adding chlorine in water to kill germs is called chlorination. Number 5, water filters. Water filters used to remove harmful bacteria. Clear kids? फिर आता है section number 2 में I explain you all the things about air, composition of air and properties of air. Now let's revise air. Air contains many gases, right? There are so many different gases are there in air, right? Which are they? So nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, right? And others things are also there. मतलब कि water vapor and dust particles are also present in air. Clear? Then next है composition of air. So composition air में मैंने आपको chart explain किया था, right? मतलब सबसे ज़्यादा 78% कौन सा था गैस एयर के अंदर? नाइट्रोजन, राइट? फिर उसके बाद है 21%, वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। फिर आता है 0.03%, वो कौन सा गैस है? वो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? फिर उसके अलावा 0.01% में कौन कौन से गैस आते हैं? वाटर वेपर, हाइड्रोजन, एर्गॉन एंड हीलियम, राइट? उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. Air has the following properties. Number 1, it occupies space. तो space को occupy करता है. It exerts pressure, मतलब उसका pressure भी होता है. It has weight, मतलब उसका weight भी होता है, right? Air का. Clear? You can see air occupying space when we blow air into a balloon. As we blow air into the balloon expands, proving that air occupies space. Clear? Now let's begin today's section, right? Point number 1, atmosphere. The layer of air around the earth is called atmosphere. एक जो एयर का लेयर होता है अर्थ के आजू बाजू में, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. क्लियर है, राइट? हम ऐसा बोलते हैं ना, आज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, आज का एटमॉस्फेयर रेनी है, आज का एटमॉस्फेयर सनी है. मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है हमारा आजू बाजू में, उसको हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर and exosphere are the 5 main layers of the atmosphere. These are the 5 main layers of the atmosphere. यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है किड्स? अर्थ है, अर्थ के आजू बाजू में अर्थ नेचुरल है, एटमॉस्फेयर है, लेयर्स ऑफ एयर है, मतलब उसके लेयर्स आप देखो.
हमें लेयर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं किड्स? नीचे से। हम हमारे अर्थ में हम रहते हैं, राइट? तो बट नेचुरल अर्थ के ऊपर 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 जाना है, राइट? तो हमें कहाँ से देखना स्टार्ट करना पड़ेगा? नीचे से। तो नीचे वाला लेयर होगा, वो कौन सा लेयर होगा? वो फर्स्ट लेयर होगा। कौन सा लेयर होगा? वो फर्स्ट लेयर होगा। तो फर्स्ट लेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। कौन सा है किड्स? ट्रोपोस्फियर। फिर सेकंड लेयर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सा है किड्स? स्ट्रेटोस्फियर। फिर थर्ड लेयर किसका है? मेसोस्फियर। किसका है? मेसोस्फियर। फिर फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर, राइट? एंड लास्ट सिक्स्थ लेयर कौन सा है? एक्सोस्फियर। कौन सा है किड्स? एक्सोस्फियर। तो ये सारे के सारे लेयर्स को हम डेप्थ में जानेंगे। किसमें जानेंगे? डेप्थ में जानेंगे। चलो, तो हमने नीचे से स्टार्ट करना है। मैंने बोला ना, नीचे वाला लेयर है वो कौन सा लेयर होगा? फर्स्ट लेयर। जैसे कि हम कोई भी बिल्डिंग में रहते हैं, राइट? तो हम ऊपर से तो नहीं गिनते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, हम नीचे से फोर्थ फ्लोर वाइज बोलते हैं, राइट? तो बिल्कुल उसी से हम यहीं पे पोजीशन पे है, हमें जहां से दिख रहा है वहीं से हमें स्टार्ट करना है काउंटिंग, राइट? तो हमारे से ऊपर का जो फर्स्ट लेयर है उसको क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे किड्स? ट्रोपोस्फियर। Troposphere is the first layer above the Earth's surface. अर्थ सरफेस के बाद का फर्स्ट लेयर किसका है? कौन सा है? ट्रोपोस्फियर। Changes in the weather occur in this layer. अगर वेदर कुछ भी चेंज होता है तो वो इसके अंदर ही चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होता है? मतलब कि वो जो चेंज विजिबल चेंज होता है ना, वो हमें दिखता है। कोई भी एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आता है, वेदर में चेंजेस आता है, तो हमें कहाँ पे विजिबल होगा? ट्रोपोस्फियर में। कहाँ पे विजिबल होगा? ट्रोपोस्फियर में। क्लियर? नाउ सेकंड वन, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में तो इजीली आपको एरोप्लेन दिख रहा है ना, मतलब कोई भी चीज अगर ट्रैवलिंग के लिए एरोप्लेन जैसे जाने वाली है तो वो कौन से लेयर में ट्रैवल करेगी? तो ओके, सेकंड लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में। क्लियर? स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फियर है वो कौन सा लेयर है? सेकंड लेयर है, राइट? The ozone layer which protects us from harmful rays is present in this layer. यहाँ पे एक ओजोन लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है किड्स? ओजोन लेयर होता है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी? यूवी रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर हमारे स्किन पे पड़ेगी तो हमें स्किन डिसीज हो जाएगी, हमारी बॉडी में होगी तो बॉडी में भी डिफरेंट डिसीज हो जाएगा, कैंसर हो सकता है हम, तो उसके डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर पड़ेंगे तो। बट एक ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। कौन सा लेयर है किड्स? प्रोटेक्टिव लेयर है, वो हमें अल्ट्रा वायोलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हमें डायरेक्टली नहीं, उसके ऊपर से गिर के हमारे बॉडी में आता है, तो उसके जो हार्मफुल रेज होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे वाले रेज ही हमें नीचे आने देता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा वाला प्रोटेक्टिव लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। क्लियर? नाउ थर्ड, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर इज द थर्ड लेयर। मेसोस्फियर कौन सा लेयर है किड्स? थर्ड लेयर है। Small pieces of rocks from the outer space, that is called meteors, falling to the earth burn up in this layer, thereby preventing them reach the earth. मतलब कि ऊपर स्पेस में से अगर छोटे छोटे जो रॉक्स बर्न, मतलब जले हुए रॉक्स बर्न हुए होते, वो नीचे गिर के आते। कहाँ पे आते? नीचे गिर के आते, मतलब उसको क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। मतलब वो डायरेक्टली अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर गिरने वाले हैं, राइट? thereby preventing them reach the, मतलब कि वो लेयर अर्थ में आने से उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है। क्लियर किड्स? तो दिस इज द मेन, मतलब कि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस लेयर, कि वो जो बर्न्ड रॉक्स आता है उससे हमें वो इजीली प्रिवेंट करता है। नाउ फोर्थ लेयर, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इज द फोर्थ लेयर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज वेरी हाई। Spacecrafts orbit in this layer. मतलब आपको पता है ना कि जब जैसे जैसे जितने जितने ऊपर जाते उतनी ठंडी बढ़ जाती है,
बिकॉज जितने हम ऊपर जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये तो फोर्थ लेयर है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, बहुत ही हाई, इवन वी कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर। बट स्पेसक्राफ्ट और ये सब कुछ सारी की सारी चीजें कहाँ पे होती है, ऑर्बिट एंड ऑल, वो कौन से लेयर में होती है, वो फोर्थ वाले लेयर में होती है। कहाँ पे होती है, फोर्थ वाले लेयर में। नाउ लास्ट वन, फिफ्थ वन, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कौन सा वाला लेयर है, फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस आउटर स्पेस बिगिंस बियॉन्ड दिस लेयर। मतलब आउटर स्पेस जो होती है वो क्या है, बियॉन्ड, मतलब कि वो आउटर स्पेस वाला जो एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है ना, वो किसका है, एक्सोस्फीयर का। किसका है, एक्सोस्फीयर का। क्लियर, मतलब वो टोटली आउटसाइड ही है। डन किड्स? Now I'm reading all the 5 layers. Please listen it carefully, okay? Number 1, troposphere. Troposphere is the first layer above the Earth's surface. Changes in the weather occur in this layer. Number 2, stratosphere. Stratosphere is the second layer of the atmosphere. The ozone layer which protects us from harmful rays is present in this layer. Number 3, mesosphere. Mesosphere is the third layer. Small pieces of rocks from the outer space called meteors fall into the earth, burn up in this layer, thereby preventing them reach the earth. Number 4, thermosphere. Thermosphere is the fourth layer. The temperature in this layer is very high. Spacecrafts orbit in this layer. मैंने बोला ना कि स्पेसक्राफ्ट और ये सब कुछ कौन से लेयर पे होता है, फोर्थ वाले लेयर पे, राइट। नाउ फिफ्थ वन, एक्सोस्फीयर. Exosphere is the fifth layer of the atmosphere. The outer space begins beyond this layer. Clear kids? I hope so you understand all the things about atmosphere. आपको समझ में आया ना? Now let's begin today's topic number 2. Importance of atmosphere. Atmosphere के बारे में तो पढ़ लिया. We need to know something about importance. Importance की भी जरूरत होती है हमें समझने की कि atmosphere की कितनी importance होती है. Clear? Now point number 1. It keeps our planet warm. मतलब हमारे planet को ये atmosphere warm रखता है. क्या रखता है kids? Warm रखता है. अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें वार्मनेस नहीं मिलेगी, मतलब वी कैन नॉट लिव इन दिस प्लैनेट. उतनी ठंडी होगी, मतलब हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. नॉट अ सिंगल लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट एटमॉस्फेयर, राइट. वार्मनेस ही नहीं होगी तो बिल्कुल ठंडी होगी, तो इतनी ठंडी होगी कि हम बेयर भी नहीं कर पाएंगे. क्लियर? सो एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एज अ वार्मनेस लेयर. क्लियर? Point number 2, it provides us oxygen to breathe. Kids, oxygen is the important part of our life, right? Without oxygen we cannot breathe. If we cannot breathe, we cannot live. तो ऑक्सीजन के बिना ये प्लेनेट में जिंदा रहना ही इम्पॉसिबल. तो एटमॉस्फेयर में क्या है किड्स? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड करता है, हम उसे ब्रीथ करते हैं, राइट. इसी वजह से हम जिंदा है. तो ये हमारा दूसरा मेन पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटमॉस्फेयर है जो हमें ऑक्सीजन भी देता है. नाउ पॉइंट नंबर 3, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब कि एटमॉस्फेयर है वो क्या कंटेन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है दैट इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब कि प्लांट्स का क्या है किड्स? प्लांट्स जो है वो क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. मतलब कि ऑक्सीजन को जितनी तरह से ज्यादा तरह से बाहर निकालेंगे तो वी ह्यूमन बीइंग्स, वी लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर दैट, राइट. तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस भी प्रेजेंट है, राइट. तो these are the types of gases which are present in our atmosphere, that is for plants photosynthesis process, right. तो ये प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है.
तो एटमॉस्फेयर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करता है, तो हमारी लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी ज्यादा इजी हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी प्लांट्स में होगी, तभी वो ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। क्लियर? तो इनडायरेक्टली टोटली हम लिविंग थिंग्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एटमॉस्फेयर के ऊपर, राइट? नाउ पॉइंट नंबर 4, the ozone layer protects the earth from the harmful rays of the sun. मैंने बोला कि सन के अंदर, सन जो हमें रेज देता है ना, सनलाइट, उसमें एक हार्मफुल रेज भी होते हैं जिसको हम अल्ट्रावायोलेट रेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूवी रेज बोलते हैं। वो जो यूवी रेज होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खराब है, जैसे स्किन डिसीजेस हो सकती है, कैंसर हो सकता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिसीजेस हमें हो सकती है। तो उस वजह से हमें क्या करते हैं कि मतलब कि ओजोन लेयर का एटमॉस्फेयर में कौन सा लेयर है? ओजोन का थर्ड वाला है, राइट? तो जिससे सेकंड वाला है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो ओजोन लेयर नहीं होगा, ओजोन लेयर नहीं होगा तो हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? कौन सा लेयर प्रोटेक्शन करेगा? तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाएंगे नहीं। सो फॉर दिस इज आल्सो द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5, the changes in weather take place the atmosphere। मतलब वेदर में कुछ भी चेंजेस होता है तो वो भी एटमॉस्फेयर प्लेस ले लेता है, राइट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हुआ कि कोई भी वेदर में चेंजेस होता है तो एटमॉस्फेयर उसकी प्लेस ले लेता है और हमें कुछ भी चीज से हमें प्रोटेक्ट कर देता है। सो दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स that is importance they are showing the importance of the atmosphere। ये क्या शो कर रहे हैं? हमारे एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। चलो लेट्स रिवाइज दिस वंस अगेन। नंबर 1, it keeps our planet warm. Number 2, it provides us oxygen to breathe. Number 3, the atmosphere contains carbon dioxide that is useful for the photosynthesis. Number 4, the ozone layer protects the earth from the harmful rays of the sun. Point number 5, the changes in weather take place in the atmosphere. Clear kids? Understand? So here we completed our session number 3. In that I explained you about atmosphere and importance of atmosphere, right? The layer of air around the earth is called atmosphere. There are how many layers are there? There are 5 layers. How many layers kids? 5 layers. Number 1 troposphere, number 2 stratosphere, number 3 mesosphere, number 4 thermosphere and number 5 exosphere. Clear? फिर उसके बाद हम उसके इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, कौन कौन से लेयर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके नीचे है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो मैंने बोला कि उस एटमॉस्फेयर हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करता है जिससे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लियर होती है। फिर जो ओजोन लेयर है वो हमारे बॉडी को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर लास्ट वन है कि वेदर में कोई भी चेंज होती है तो एटमॉस्फेयर प्लेस ले लेता है। Clear kids? So in next session I am going to explain about water, फिर उसके बाद sources of water, फिर उसके बाद water supports life. As we all know, water is the only main thing which supports life, right? water के बिना भी हम जिंदा रह सकते नहीं है। फिर impurities in water, मतलब कि गंदगी भी होती है water के अंदर, कोई soluble होती है कोई insoluble होती है, right? फिर है sedimentation और decantation। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सेशन नंबर 4 में एक्सप्लेन करूंगी। ओके किड्स? आई हैव शेयर्ड पीडीएफ विद यू। मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है, उसमें ब्लैंक्स है, डुअल रिलेटेड करके हेडिंग है। इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो वेरी नाइसली देन यू शुड नो आंसर्स, कि आपको इजीली आंसर्स आ जाएंगे। ट्राई टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। ओके किड्स? सो टिल नेक्स्ट सेशन